Good morning, friends. So, in our answer writing initiative by IES.network, today is day 5. And the question we have selected today is from GS paper 1, and that the topic is geography. So, the question is about cyclones. So, the question I took was based on Nisagra cyclone, which recently landfalled in the state of Maharashtra. So, the question is though the Nisagra cyclone affected parts of Maharashtra, tropical cyclones usually don't occur along western coast of India. Why? The first question tag is why. Second is what was then exception about Nisagra? It is talking about that usually there is less intensity and frequency of cyclones along the western coast of India. बट साइक्लोन निसाग्रा में ऐसा एक्सेप्शन क्या था? तो ये दो क्वेश्चंस पूछ रहा है, दो क्वेश्चन टैग्स हैं. फर्स्ट इज वाई एंड द सेकेंड वन इज वॉट. It's a 10 marker question, and therefore we need to be very concise by writing our answer. So let's start how we can write a good answer. So the question is having two question tags. One is why and the other one is what. Before starting, you need to have a basic knowledge of geography in the sense that basic knowledge which is required for this question to be attempted is that air flows from a region of high pressure to low. We all know that. Another thing is tropical cyclones are formed with some preconditions, and these preconditions are for our question, that is the temperature should be above or greater than 27 degrees Celsius. Next is there should be sufficient Coriolis force. There are other preconditions also, but these are the basic preconditions which are required, and therefore tropical cyclones are usually formed in a tropical region. ठीक है, usually around 5 degree north to 25 degree north. So now let's start our answer. तो अब इसमें again in the introduction we have two methods which we are discussing every day, that is either we can go with static or either we can go with dynamic. अब स्टैटिक में इट्स वेरी क्लीशे काइंड ऑफ थिंग, बहुत जेनरिक हो जाएगा अगर तुम साइक्लोन क्वेश्चन में ट्रॉपिकल साइक्लोन की डेफिनेशन दोगे. दे सकते हैं, बट वी ऑल नो, एग्जामिनर नोज कि साइक्लोन होता क्या है. तो लेट्स बी मोर इनोवेटिव, लेट्स बी मोर इन्फॉर्मेटिव. तो हम क्या करेंगे, करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ हम स्टैटिस्टिक्स या कुछ हम डेटा डाल सकते हैं विच कैन शो द इवेंट कॉल्ड निसाग्र साइक्लोन. तो हम इसमें बता सकते हैं कि यूजुअली इंडिया get hits around 10% of वर्ल्ड्स ट्रॉपिकल साइक्लोन. जो इंडिया है एज अ सब कॉन्टिनेंट, उसके ऊपर अराउंड 10% जो वर्ल्ड के टोटल ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो हर साल हिट करते हैं. ये हमें एक स्टैटिस्टिक्स पता है, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज़ अ नेशनल कमीशन ऑन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट, NCRMP. अकॉर्डिंग टू इट, इसने बताया है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ साइक्लोन्स और परसेंटेज ऑफ साइक्लोन्स दैट आर हैपनिंग इन बे ऑफ बंगाल एंड इन अरेबियन सी. तो फॉर बे ऑफ बंगाल ये क्या कहता है, इट इज़ अराउंड 58%. इसका मतलब 58% साइक्लोन्स का है बे ऑफ बंगाल में फॉर्म होते हैं एंड दे गो टूवर्ड्स द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है. और अरेबियन सी में इसका जो डेटा है वो है 25%. सो दिस इज़ itself showing that western coast of India is relatively less prone to tropical cyclones. तो पहले तो हम रीजंस देखेंगे वाई वेस्टर्न कोस्ट में ऐसा क्या रीज़न है, और फिर सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हम देखेंगे कि निसाग्र साइक्लोन इसका एक्सेप्शन क्यों था. तो वी कैन राइट अ गुड इंट्रोडक्शन दैट इंडिया गेट्स हिट अराउंड 20% ऑफ द टोटल वर्ल्ड्स ट्रॉपिकल साइक्लोन अकॉर्डिंग टू नेशनल कमीशन ऑन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट. It highlights that BOB, Bay of Bengal, receives around 58% of tropical cyclones every year and Arabian Sea around 25%. तो ये इंट्रोडक्शन हो जाएगा. अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम चाहें तो उसके अंदर मेन बॉडी आएगी, मेन बॉडी विच इज़ गिविंग अस द रीजन्स दैट वाई वेस्टर्न कोस्ट इज़ लेस अफेक्टेड देन द ईस्टर्न वन. अब इसमें फर्स्ट जो है हेडिंग हमारा जो होगा वो क्या होगा, रोल ऑफ ईस्टर्न अफ्रीका. अब ईस्टर्न अफ्रीका को अगर हम देखेंगे तो दिस इज़ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. यू ऑल्सो हैव नीड टू ड्रॉ लाइक दिस ओनली, ठीक है. और यहाँ कहीं हमारा क्या आएगा, इंडिया,
ठीक है। अब क्या है कि जो यहाँ पर टोपोग्राफी है वेस्ट ईस्ट अफ्रीका की, दैट इज़ यूजुअली क्या है, माउंटेनियस है और हाईलैंड्स मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच यहाँ पर क्या बनता है, हमारे पास हाई प्रेशर। हमें पता है अगर जो एलिवेटेड एरियाज़ होंगे तो जैसे जैसे हम क्या है कि एयर में ऊपर जाते रहते हैं, हाइट इंक्रीज़ करते हैं, तो क्या होता है हमारे पास एयर कूल होना स्टार्ट हो जाती है, और एयर कूल होती है तो वहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हाई प्रेशर, ठीक है। तो ये हाई प्रेशर क्या करता है, ड्राइव करता है विंड्स को कहाँ पर, टूवर्ड्स द अरेबियन पेनिनसुला ऑफ इंडियन कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो ये ड्राइव करता है। अब इसके बीच में क्या है, हमारे पास अरेबियन सी है, ये हमारे पास अरेबियन पेनिनसुला है इंडिया का, ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई। अब जब ये जो विंड्स हैं ये जो फास्ट ब्लो करती हैं तो वो ये करती हैं, दे डिसिपिएट द हीट, दे डिसिपिएट द हीट। एग्जाम्पल सिंपल सी बात है, इफ़ यू आर ड्राइंग योर क्लोथ्स इन वन अंडर द सन एंड वन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूज फास्ट वेलोसिटी विंड्स, तो किसमें फटाफट आपके क्लोथ्स ड्राई हो जाएंगे, सिंपली इट इज़ कि विंड्स हैव द मोर कैपेबिलिटी टू मेक द थिंग ड्राई। तो देयरफॉर जो भी टेम्परेचर यहाँ पर बनने की कोशिश होती है अरेबियन सी पे, ठीक है, उस टेम्परेचर की हीट को क्या है, ये विंड्स डिसिपेट कर देती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ पर्टिकुलर अमाउंट का टेम्परेचर कभी सस्टेन ही नहीं कर पाता है, ठीक है। टेम्परेचर सस्टेन नहीं कर पाएगा तो प्री कंडीशन क्या हो जाएगी, मिस हो जाएगी, एंड देयरफॉर देयर आर लेस चांसेस दैट साइक्लोन्स विल बी फॉर्म्ड इन द अरेबियन सी। पहली चीज़ तो ये समझ में आ गई कि हाई प्रेशर फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका इज ड्राइविंग विंड्स टूवर्ड्स द अरेबियन सी and the heat get dissipated in the process. The second point है, and that is very important, that is role of subtropical ridge and steering winds. अब subtropical ridge एक meteorological term है, ठीक है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है बट स्टिल दिस वॉज इन न्यूज़ एंड देयरफॉर वी नीड टू राइट दिस कीवर्ड ओनली। तो उसको समझ लेते हैं होता क्या है ये, ठीक है। सब ट्रॉपिकल रिज होती है एक हाई प्रेशर सेल, ठीक है, एक हाई प्रेशर सेल होता है सब ट्रॉपिकल रिज। अब ये हाई प्रेशर सेल हमें कहाँ मिलता है, हमें मिलता है इस एरिया में, ठीक है, ये हाई प्रेशर सेल हमें इस एरिया में मिलता है, ठीक है। यूजुअली गुजरात, राजस्थान और अपर महाराष्ट्र के रीजन में मिलता है। कब मिलता है, इट इज़ ड्यूरिंग प्री मानसून्स, मानसून आने से पहले, ठीक है। जब अगर मानसून आ ही जाएगा तो ITCZ आ जाएगा यहाँ पे, तब तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। मगर अभी क्या है, प्री मानसून के टाइम पे हमें यहाँ पर एक सब ट्रॉपिकल रिज मिलता है। अब सब ट्रॉपिकल रिज है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हाई प्रेशर होगा, बिकॉज हमने इसकी कंडीशन बता दी है, करेक्टरिस्टिक्स आती है कि सब ट्रॉपिकल रिज कैसे होते हैं, हाई प्रेशर सेल्स होते हैं, ठीक है। अब हाई प्रेशर सेल है तो ये ग्राउंड पे नहीं है, इट इज़ नॉट ऑन द ग्राउंड, कि ये मान लो महाराष्ट्र है तो इट इज़ नॉट ऑन ग्राउंड बट इट इज़ इन द अपर एयर, यहाँ पर कहीं हमारा हाई प्रेशर सेल है। अब हाई प्रेशर सेल है तो हाई प्रेशर से क्या है, विंड्स बाहर जाती हैं लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ से भी क्या है कि विंड्स बाहर जाती हैं ऐसे डायरेक्शन में। तो होता क्या है कि कोई भी मान लो गलती से एक साइक्लोनिक डिप्रेशन बन भी गया, ठीक है, साइक्लोनिक डिप्रेशन बन गया, और वो साइक्लोनिक डिप्रेशन क्या है कि इंटेंसिफाई होते 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 यहाँ पर पहुँच रहा है। बट पहुँच रहा है तो एक तो इसको क्या मिल रहा है, ये बाउंड्री का बैरियर मिल रहा है, ये बाउंड्री जो बनी यहाँ पर हाई प्रेशर सेल की, ठीक है। और दूसरा क्या है कि जो यहाँ से हवा निकल रही है अपर एयर्स, दे स्टीयर देम टूवर्ड्स द गल्फ रीजन, तो यहाँ गल्फ रीजन में पहुँचा देती हैं वो साइक्लोन को। तो साइक्लोन बना यहाँ पर था सेंट्रल अरेबियन में, पहुँच रहा था महाराष्ट्र के अराउंड, ठीक है, या फिर वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे, मगर क्योंकि प्रेजेंस ऑफ एक सब ट्रॉपिकल रिज के कारण एक तो उसको बैरियर का फेस करना पड़ा, प्लस जो ये ऊपर इस बैरियर से विंड्स निकल रही थी कॉल्ड एज स्टीयरिंग विंड्स, दे स्टीयर्ड इट टूवर्ड्स द गल्फ रीजन, उन्होंने उसको गल्फ रीजन में फेंक दिया, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब स्टीयरिंग विंड्स यूजुअली क्या होती हैं, अपर एयर में रहती हैं, ठीक है, ज़्यादा ग्राउंड पे नहीं मिलती हैं, अपर एयर में मिलती हैं। तो ये ग्राउंड है, पर हमारा साइक्लोन का जो पूरा सिस्टम होता है, ठीक है, वो भी क्या रहता है हमारा एक पर्टिकुलर हाइट का होता है, ठीक है, दिस इज़ साइक्लोनिक सिस्टम। और यहाँ ऊपर जो विंड चलेंगे स्टीयरिंग विंड्स, वो कहाँ ले जाएंगे इसको, गल्फ रीजन के वहाँ पे। तो समझ में आ गया क्या रोल है सब ट्रॉपिकल रिज का। कब है ये, प्री मानसून के टाइम पे है। जब मानसून आ जाएगा तब तो ITCZ इस्टेब्लिश हो जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तब ये हाई नहीं मिलेगा, ठीक है। तो प्री मानसून ही क्या है, जो साइक्लोनिक पीक आती है एक प्री मानसून, उसको क्या है कि वैनिश कर देता है ये, या फिर उसको स्टीयर कर देता है कहाँ पर, गल्फ रीजन की तरफ, ठीक है। जो थर्ड इंपॉर्टेंट रीज़न है वो है
कि देयर इज़ लेस डिस्चार्ज ऑफ रिवर्स इनटू अरेबियन सी। अब यूजुअली क्या है कि रिवर्स का जो वाटर होता है दैट इज़ हैविंग हाई टेम्परेचर, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ओशन वाटर। ये यूजुअली है, कहीं कहीं एक्सेप्शंस मिलेंगे हमें, ठीक है, यूजुअली होता है। तो अगर क्या हो कि मोर वाटर इज़ कमिंग फ्रॉम रिवर्स, ठीक है, इन द वेस्टर्न साइड, देन व्हाट विल हैपन इज दे विल इंक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है। ऑल्सो दे वोंट अलाउ द कोल्ड वाटर फ्रॉम बीनीथ टू मूव अपवर्ड्स। क्यों? क्योंकि एक लिड की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। तो दो चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, एक तो वो वार्म वाटर की कंट्रीब्यूशन दे रहा है, पर एट द सेम टाइम नीचे से कोल्ड वाटर है ओशन का, उसको ऊपर भी नहीं आने दे रहा बिकॉज इट इज़ एक्टिंग एज अ लिड। तो ये तीन फैक्टर्स हैं, प्रोमिनेंट फैक्टर्स हैं, दैट इज़ द रीज़न वाई देर इज़ लेस प्रोबेबिलिटी, लेस फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स दैट आर हिटिंग ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द कंट्री। तो ये तीन रीजंस हो गए। तो फर्स्ट हमने इसका आंसर दे दिया है। वी विल बी ड्राइंग दिस डायग्राम, हम एक यहाँ पर रिज बता के दिखा देंगे, रिज का बैरियर दिखा देंगे, बैरियर से जो स्टीयरिंग विंड जा रही है और उसको कहाँ पर गल्फ रीजन, ओमान, पर्शियन गल्फ, वहाँ पर ले जा रही है, वो भी हम शो कर देंगे। तो हमारा स्पेशल डायमेंशन दिख गया मैप के फॉर्म में, हमने सारे पॉइंट्स लिख दिए हेडिंग के फॉर्म में, एग्जाम्पल्स दे दिए। तो हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड पार्ट है व्हाट इज़ देन द एक्सेप्शन विद निसाग्र साइक्लोन। तो भैया ये तो समझ में आ गया, तो अब निसाग्र साइक्लोन यहाँ पर क्यों आया उसको भी देख लेते हैं। तो निसाग्र साइक्लोन आने के पीछे कई सारे डेटाज आए हैं हमारे सामने, और डेटाज क्या हैं कि IMD, ठीक है, IMD की एक ई साइक्लोन एटलस है, ठीक है। ई साइक्लोन एटलस क्या है कि एक डेटा बैंक है, ठीक है, विच टॉक्स अबाउट और विच स्टोर्स द डेटा और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट साइक्लोन्स। तो ये क्या है कि ई एटलस ने ट्रैक करती है फ्रॉम अक्रॉस मैनी ईयर्स किस तरीके से ट्रॉपिकल साइक्लोन्स या डिप्रेशंस का मूवमेंट है, बिहेवियर है। तो अकॉर्डिंग टू इट सिंस 1891 सिंस 1891 से देर इज़ नो ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है, विच हैज़ गिवन अ लैंडफॉल ओवर महाराष्ट्र। कोई भी ट्रॉपिकल साइक्लोन ने लैंडफॉल नहीं किया है महाराष्ट्र से, ठीक है, इन द मंथ ऑफ जून, ड्यूरिंग जून में एक भी ट्रॉपिकल साइक्लोन लैंडफॉल नहीं किया है महाराष्ट्र की लैंड पे। कब से? सिंस 1891। और निसाग्र कब आया था हमारे पास? जून में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इट ओनली, कि एक और इसने स्टैटिस्टिक्स दी है कि सिंस 1940 एंड 1980 वर द ओनली 2 ईयर्स, सिर्फ ये 2 ईयर्स थे जब क्या हुआ हमारे पास कि डिप्रेशंस बने। 2 डिप्रेशंस भी क्या होते हैं? लो प्रेशर सेंटर्स ही होते हैं साइक्लोन की तरह, ठीक है। 2 डिप्रेशंस हुए जो कहाँ पहुँचने की कोशिश करने लगे, ठीक है, क्लोज टू वेस्टर्न कोस्ट के पास पहुँचने की कोशिश करने लगे, बट उससे पहले ही क्या है कि वो ख़त्म हो गए बिकॉज दे वर वीक, ठीक है। डिप्रेशन हैं, वीक हैं। अगर हम देखें तो वेदर सिस्टम होता है कोई भी, ठीक है, तो वेदर सिस्टम यहाँ पर क्या है, पहले डिप्रेशन बनता है, ठीक है, फिर वेदर सिस्टम डिप्रेशन के बाद इंटेंसिफाई होकर क्या बनता है हमारे पास? ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। तो डिप्रेशन थे, वीक थे, पहुँचने की कोशिश करी क्लोज ओनली 2 ईयर में, 1940 1980 में, बट वो डिसिपिएट हो गए। तो ये 2 बहुत स्टार्क रियलिटीज़ हमें पता लगती हैं साइक्लोन्स के बारे में, स्पेसिफिकली फॉर वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है, कि ऐसे कभी हुआ ही नहीं। तो फिर निसाग्र के अंदर क्यों हुआ? तो अब जो साइंटिस्ट इसकी बात बता रहे हैं, दे आर एक्चुअली गिविंग द रीज़न टूवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। दीज आर द 2 रीजन्स। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो स्टीयरिंग विंड्स थी, ठीक है, स्टीयरिंग विंड्स थी, और हमारे पास क्या था यहाँ पे? एक सब ट्रॉपिकल रिज, ठीक है, सब ट्रॉपिकल रिज थी। ये दोनों क्या है? इन दोनों के पैटर्न में क्या है कि वेरिएशन आ गया। दोनों के पैटर्न वेरिएशन क्यों आया है? बिकॉज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज ओशंस आर गेटिंग मच वार्मर, ये रीज़न है इसका, ठीक है। तो हम बता सकते हैं कि देयर पैटर्न हैज़ नलीफाइड। अब जब पैटर्न ख़राब हो जाएगा तो जो बैरियर मिल रहा था, यहाँ पर जो बैरियर था हमारे पास, जब पैटर्न ख़राब हो जाएगा तो ये वीक हो जाएगा, हाई प्रेशर, तो बैरियर नहीं मिलेगा। जब बैरियर नहीं मिलेगा और वीक हो जाएगा हाई प्रेशर, तो जो स्टीयरिंग विंड्स हैं ये वीक हो जाएंगे, अपना पैटर्न चेंज कर लेगी, डायरेक्शन चेंज कर लेगी, और फिर जो साइक्लोन यहाँ पर बना निसाग्र, ठीक है, वो अपनी डायरेक्शन के थ्रू यहाँ पर पहुँच जाएगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दोज विंड्स विच आर कमिंग फ्रॉम द ईस्ट अफ्रीकन साइड, ठीक है। ये हमारा सारा पॉइंट यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो अब हमें पता लग गया सारा इशू क्या था,
और सारा प्रोसेस किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो अब कंक्लूजन में लिखना है तो कंक्लूजन हम सिंपल सी बात है, चलो हमने अर्बन फ्लड्स की बात करी थी, उसी के तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर सिटीज़ का जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान होता है उसमें वी शुड इंक्लूड व्हाट, वी शुड इंक्लूड साइक्लोन, स्टॉर्म, डिज़ास्टर्स एंड देयर डिस्ट्रक्शन प्लान्स। ठीक है, जो साइक्लोन स्टॉर्म के डिस्ट्रक्शन प्लान्स हैं उनको पहले से ही क्या हमें बना के रखना चाहिए किसमें, सिटी के डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान में। अदरवाइज़ अगर ये नहीं करेंगे तो जो एक्टिविटी 200 साल में से एक बार हुई थी, ठीक है, निसागर वाली एक्टिविटी क्या है 200 ईयर्स के अंदर क्या हुई है, एक बार हुई है, ठीक है, वो आने वाले टाइम में क्या है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज दे कैन हैपन एवरी 20 ईयर्स एज वेल। ठीक है, तो साइंटिस्ट आर एक्चुअली अलर्टिंग अस टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू इंक्लूड cyclone related storm risk profiling in the disaster management plan of the city and therefore they are highlighting the gravity of the situation। तो ये सारा प्रोसेस था। ठीक है, अगेन देख लेते हैं, 3 पार्ट से हमने डिवाइड किया, फर्स्ट इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन एक पार्ट हो जाएगा हमारा पूरा, और फिर हमारे पास वाई जिसका हमने रीज़न दिया, उसके अंदर 3 पॉइंट दिए, एक अफ्रीका वाला, दूसरा सब ट्रॉपिकल रिज वाला कैसे बनती है, होती क्या है, सब ट्रॉपिकल रिज क्या होती है, हाई प्रेशर सेल होता है एक, उससे स्टीयरिंग विंड्स निकलेंगे हाई प्रेशर से, वी नो दैट स्टीयरिंग विंड्स आर फॉर्म्ड, और तीसरा देयर इज लेस डिस्चार्ज ऑफ रिवर्स। ठीक है, और रिवर्स का यूजुअली क्या होता है टेम्परेचर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ओशन वाटर, एंड देयरफॉर अगर ज़्यादा होता तो लिड बना लेती, लिड बन जाती अगर, ठीक है, अगर लिड बन जाती तो लिड विल इंक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है, डज नॉट अलाउ कोल्ड वाटर फ्रॉम बीनीथ टू इंट्रूड इट। तो यहाँ पर क्या है चांसेस ऑफ बिकमिंग टेम्परेचर इज हाई एंड देयरफॉर मोर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो ये सब रीजंस थे, हमने इसको डिस्कस किया अच्छे से। आई होप इट वाज अ डिफ़िकल्ट काइंड ऑफ थिंग बट आई होप आई एक्सप्लेन इट इन अ वेरी सिंपल मैनर। अगर ये कीवर्ड्स होंगे हमारे पास, क्या रोल ऑफ ईस्ट अफ्रीका, ठीक है, रोल ऑफ सब ट्रॉपिकल रिज, ठीक है, लेस डिस्चार्ज फ्रॉम वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स, तो ये क्या है कि एग्जामिनर विल अंडरस्टैंड कि व्हाट यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू प्रोजेक्ट। ठीक है, इट्स अ बिट टेक्निकल थिंग, बट अगर आप साइक्लोन पढ़ोगे तो उसके अंदर यूजुअली हमारे पास क्या होता है, कुछ प्री कंडीशंस होती हैं, ठीक है, और प्री कंडीशंस क्या है कि अगर फुलफिल होंगी तो साइक्लोन बनता है, फुलफिल नहीं होंगी तो साइक्लोन नहीं बनता है। एंड वी आर सीइंग दैट एट मेनी टाइम्स जो फुलफिल करने वाली प्री कंडीशंस हैं वो अरेबियन सी में नहीं बन पाती हैं, एंड देयरफॉर देर इज़ लेस परसेंटेज ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स विच आर फॉर्मिंग इन अरेबियन सी, अराउंड 25%। यही क्या है कि सिचुएशन अपोजिट है कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में, जहाँ पर 58% ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं और वो ईस्ट कोस्ट पे जाके हिट करते हैं। सो आई गेस कि टुडेज़ लेक्चर वॉज एनरिचिंग फॉर योर जोग्राफिकल नॉलेज एंड ट्राई टू प्रैक्टिस इट, and I will also be uploading a model answer on the Telegram channel. So till then, kindly join the YouTube channel of IAS Network and have a nice day. Thank you.